Welcome once again. In the last video or in the last lecture, what we have studied is all about DNA replication. We have seen different enzymes involved during the DNA replication. We have seen different steps involved during the process. We have learned about ORI, we have learned about the activation of nucleotides, we have learned about the uncoiling of helix, we have learned about the formation of primer, and finally we have learned about proofreading. All these steps along with the detailed explanation of the process of DNA replication, that is the formation of a copy of DNA from a DNA strand, which from DNA strand or a parent DNA strand which behaves as a template. We have already seen this. We have already learned that DNA replication is a semi-conservative type of DNA replication is of semi-conservative type, which was eventually even proved of by Michelson and Stahl, and we have even seen these experiments too in detail. We have seen the experiment of Michelson Stahl and noted about Taylor experiment too. So in the last video, I also have given you a sheet or a summary of the process of DNA replication from which you can revise it very easily in last of the video even. So in this video, what I'm going to talk in detail is all about RNA. But before proceeding, let us summarize me the process of RNA replication in some few important points, so that when you want to expand this point, you can easily get all the details of the topic if you have understood or if you have watched the video earlier. All right, so let's see. What I've written over here is something which you can easily see, that DNA replication is a fast process. Am I clear why it is a fast process? You must be knowing it. DNA replication is a fast process because it has to join base pair at the speed of 2000 base pair per second. We have seen it in E. coli, and the whole E. coli cell, that is 4.6 into 10 raised to the power 6 billion pairs. All right, sorry, 10 raised to base pairs easily replicate within 18 minutes. So you can imagine the level of speed by which a DNA replication occurs. Therefore it is a fast process. Any doubt? Again, let me proceed. It is a semi-conservative process. Why it is a semi-conservative process? We have already seen that half of the parent DNA is conserved while the process of replication. It is a semi-continuous process. Why it is a semi-continuous process? It is a semi-continuous process because on the one strand, the continuous synthesis of DNA strand occurs, whereas on the other strand there is a discontinuous synthesis of a DNA strand. And why there is a discontinuous synthesis? There is discontinuous synthesis of that strand because, why is the discontinuous synthesis? It is discontinuous because, answer me, it is because of the formation of lot of primers, and those primers are required because DNA polymerase enzyme need OH group in order to start the process of replication. We have already talked in detail, and that is why a lot of fragment of DNA is generated, which is further joined with the help of an enzyme which is known as DNA ligase, and those fragments are named after a scientist who is Okazaki. Therefore, those fragments are known as Okazaki fragments. Later on, those fragments are joined by an enzyme which is known as DNA ligase. We have all read it in our last video. Therefore, it is a semi-continuous process or a semi-discontinuous process. Both is same thing. It is a bidirectional process. You have already seen it. That in one strand, that is in one parent strand, in one means in one template or the parent strand which behaves as template, one template has a direction of 5 dash to 3 dash, whereas the other template has a direction of 3 dash to 5 dash. Therefore it is bidirectional. All right, it is highly accurate. It needs to be accurate because any error while DNA replication or any error while the process of replication can lead to various metabolic and physiological disorder, which can ultimately lead to a lot of congenital disease, and therefore ultimately the individual can die. Therefore it needs to be highly accurate. I have already explained this point you too. It's an energy requiring process because there needs to be a formation of high energy phosphodiester bond. All right, so all this point we have already discussed, but I have written over here just to make you write it down in your notes so that you can revise it whenever necessary. All right,
question can be asked, is DNA replication is a fast process? All right, it's a fast process. So from these six points you can easily remember what DNA replication is all about. तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपका डीएनए रेप्लिकेशन की पूरी कहानी थी। जाइए आप एनसीईआरटी में जहाँ तक डीएनए रेप्लिकेशन दे रखा है वहाँ तक अच्छे से पढ़िए, समझिए। कोई डाउट हो देन यू कैन कमेंट मी एंड यू कैन directly contact me. All right, we'll try to sort it down. Moving ahead, we have our next topic as RNA. All right, we have studied about the replication of a strand of DNA which can be transferred from the parent to the offspring. All right, but if it is transferred into the other organism, or if DNA is present within our nucleus, so what is the work of DNA? We have studied the flow of genetic information. How does the flow of genetic information occurs? I have already told you that flow of genetic information occurs in this process. That first, this is DNA. All right, this is DNA. This DNA forms RNA, and these RNA forms proteins. And why protein is the ultimate product? Protein is the ultimate product because this protein is ultimately nothing but the enzymes, and enzymes are required for the physiological process. All right, therefore we ultimately need proteins and enzymes. Therefore this is the way of flow of genetic information within our cell. So we have made a copy of DNA from DNA by the process of replication. All right, by the process of replication we have made it, and now we have to make DNA. Now we have to make RNA from this DNA. But before making RNA, let us have some clear-cut idea about RNA. All right, that what is RNA? So let's see what RNA is all about in our next slide. So I have written the topic is all about RNA. So here we are going to learn about RNA. यहाँ पर हम RNA के बारे में ही पढ़ेंगे। और RNA क्या होता है, फुल फॉर्म बच्चे से जानते हो आप लोग, दैट इज फ्रॉम योर क्लास 8th और क्लास 10 से आपको 100 बार पढ़ाया होगा। फुल फॉर्म क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पर राइबो क्या बता रहा है, राइबो बता रहा है किसको, राइबोस शुगर को बता रहा है। किसको बता रहा है, इट इज टॉकिंग अबाउट राइबोस शुगर। और ये न्यूक्लिक एसिड किसे बोलते हैं, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। ये रहा इसका फुल फॉर्म। ये भी क्या है, आरएनए भी क्या है, आरएनए रह जाए या डीएनए रहे, दोनों के दोनों ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, मतलब न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर हैं, इसलिए इसे क्या बोल दिया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। बट डीएनए मोस्टली डबल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। हाउएवर देयर आर एक्सेप्शन, एग्जांपल रियो वायरस ले लो आप, लेकिन मोस्टली ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। अगर सिंगल स्ट्रैंडेड होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी नहीं, दो स्ट्रैंड होगा ही नहीं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी नहीं, स्टेबिलिटी आप रूपी कम जाएगी। यदि स्टेबिलिटी कम जाती है तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो स्टेबिलिटी तो कम नहीं चाहिए ना, स्टेबिलिटी तो जिसकी ज़्यादा रहेगी वही जेनेटिक मटेरियल के रूप में ज़्यादा ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाएगा। और क्योंकि ये मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड पाया जाता है इसलिए लेस ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है। सारी बातें मैंने आपको पहले भी बता रखी है और अच्छे से बता रखी है, अच्छा टाइम दिया मैंने इस पर। ऑलराइट, आरएनए के पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। जैसे डीएनए में पार्ट्स होते हैं वही आरएनए में पार्ट्स होते हैं, क्योंकि आरएनए भी तो न्यूक्लियोटाइड ही है, न्यूक्लिक एसिड ही है। न्यूक्लिक एसिड में शुगर होता है तो यहाँ पर भी शुगर होगा। यहाँ पे कौन वाला शुगर होगा, राइबोस शुगर। 100 बार बता चुका हूँ मैं आपको। 5 कार्बन का पेंटोस शुगर होता है, एल्डोस एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ रहता है, इसको इसलिए एल्डोस शुगर भी बोलते हैं। इसका फार्मूला C5H10O5 दैट इज CnH2nO। ऑलराइट, आगे देखते हैं। फॉस्फेट तो रहेगा ही रहेगा। फॉस्फेट किस फॉर्म में रहता है, इन द फॉर्म ऑफ H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, नाइट्रोजन बेसिस कौन वाला इसमें पाया जाता है, प्यूरिन्स पायरिमिडिन्स दोनों पाए जाएंगे। प्यूरिन्स में A और G तो दोनों के अंदर ही पाया जाता है, और पायरिमिडिन कट में C और U पाया जाएगा, ये T नहीं पाया जाएगा, इसलिए मैंने लिख दिया है ओनली DNA। C और U पाया जाएगा, मतलब A का जो बॉन्डिंग होती है कॉम्प्लीमेंट्री T, A फॉर्म्स डबल बॉन्ड विथ U। ऑलराइट, A फॉर्म्स डबल बॉन्ड विथ U। अदर पॉइंट व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट आरएनए, यहाँ पर मैं शॉर्ट में समराइज कर देता हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें मैं पहले बढ़ा रखा हूँ तो फिर क्यों बताना बार बार एक ही चीज़ों को। मैंने आपको बात पहले बताया था कि आरएनए पहला जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है। आरएनए वर्ल्ड जब अपन टॉपिक पढ़े थे तो मैंने आपको समझाया था कि आरएनए पहला जेनेटिक मटेरियल क्यों है। आरएनए पहला जेनेटिक मटेरियल इसलिए है क्योंकि आरएनए कैन बिहेव बोथ एज ए जेनेटिक मटेरियल और एंजाइम्स। और यदि आरएनए एंजाइम और जेनेटिक मटेरियल दोनों के रूप में यदि बन सकता है, दोनों के रूप में यदि काम कर सकता है, तो आरएनए खुद ही जेनेटिक मटेरियल और एक ही टाइम पे एंजाइम का रोल प्ले करके आरएनए से प्रोटीन बना देगा, और वही प्रोटीन
हमारे बॉडी की मशीनरी में काम आती है। डिफरेंट जगह पे प्रोटीन्स ही तो एंजाइम का रोल प्ले करती है और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस चलते हैं। मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी के अंदर प्रोसीड होती है। और मेटाबॉलिज्म क्या होते हैं? सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शंस अकरिंग विद इन आवर बॉडी। और बिना रिएक्शन के कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी दुनिया में सेल नहीं चल सकता। ऑलराइट, तो क्यों ये पहला जेनेटिक मटेरियल है? पहले भी एक्सप्लेन किया था, अभी भी बता दिया, इसलिए क्योंकि ये दोनों रोल प्ले कर सकता है, द रोल ऑफ ए एंजाइम एंड द रोल ऑफ ए जेनेटिक मटेरियल। म्यूटेशन इसमें फास्टर होते हैं। क्यों नहीं होगा भाई म्यूटेशन फास्टर? आरएनए का यदि एक ही स्ट्रैंड आरएनए में पाया जाता है तो एक्सपोज्ड है ये, आरएनए में एक्सपोज्ड है ये वाला। मान लो कि अगर यहाँ पे लगे हुए स्ट्रैंड लगे हुए, ए लगे हुए हैं, यू लगे हुए हैं, जी लगे हुए हैं, सी लगे हुए हैं, सी लगे हुए हैं, जी लगे हैं, यू लगे हुए हैं, तो यहाँ से कोई भी यदि म्यूटाजन आता है, म्यूटेशन करने वाला मटेरियल, इसमें म्यूटेशन कर जाएगा। और एक जगह पे मान लो यू लगा दिया, म्यूटेशन हो गया, क्योंकि जहाँ पर ए था अब वहाँ पर यू आ गया। अब इस मान लो कि इन तीनों बेस पेयर से मान लो कोई प्रोटीन के बन रहा था, अब प्रोटीन कोई एम बनेगा, तब बनना था के, बन गया एम, हो गई नहीं गड़बड़ी? तो के मान लो कोई प्रोटीन था, ये कोई बीमारी से हमें होने से बचा रहा था, एम प्रोटीन हो गया, ये क्या करा दिया? अल्टीमेटली डिजीज करवा दिया। यही तो प्रोसेस होता है। अब मान लो सी है और सी का आया म्यूटाजन, इसको जी करवा दिया, जी करवा दिया, बना रहा था ये कुछ और, ये कुछ और बनाएगा, अगेन डिजीज हो गया। तो इसमें म्यूटेशन फास्टर इसलिए होते हैं क्योंकि एक तो इसमें स्टेबिलिटी कम है, रिएक्टिविटी भी इसकी ज़्यादा होती है। रिएक्टिविटी ज़्यादा क्यों होती है? क्यों होती है रिएक्टिविटी ज़्यादा? मैंने आपको कितनी बार बताया और फिर से बता रहा हूँ कि रिएक्टिविटी ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि इसमें एक OH फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा है। सेकंड कार्बन पे इसके राइबोस के स्ट्रक्चर में मैंने बताया था। तो जिसकी में फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा होंगे उसकी रिएक्टिविटी तो ज़्यादा होगी, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप होते हैं क्यों? फंक्शनल ग्रुप रिएक्शन में ही तो पार्टिसिपेट करते हैं, देयरफॉर इट्स रिएक्टिविटी इज मोर। जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी वो स्टेबल तो कम रहेगा, ये तो फिक्स है। जो भी चीज़ ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो स्टेबल कम होगा। अगर आप ज़्यादा किसी से लड़ाई झगड़ा करते हो देन योर मेंटल स्टेबिलिटी इज लेस। अगर आप बात बात पर गुस्सा होते हो तो आप मेंटली कम स्टेबल हो। बिल्कुल हर जगह का ये है, जो ज़्यादा उछल कूद मचाएगा वो स्टेबल कम होगा। ऑलराइट, अगर आप में क्षमता है हमेशा ज़्यादा, मान लो कोई बच्चा है हमेशा खेल रहा है, तो स्थिर है क्या? नहीं है ना स्थिर, देयरफॉर इसकी स्टेबिलिटी लेस है। क्यों स्टेबिलिटी लेस है बता दी मैंने। और इट इज़ बेटर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि स्टोर ये नहीं कर सकता है। क्यों नहीं स्टोर कर सकता है? क्योंकि ये स्टेबल ही नहीं है, और हमें तो ऐसा जेनेटिक मटेरियल चाहिए जो स्टेबल हो। क्यों स्टेबल चाहिए हमें जेनेटिक मटेरियल? इसलिए स्टेबल चाहिए क्योंकि यदि बार बार बदलता रहेगा जेनेटिक मटेरियल, तो मान लो एक प्रोजेनी मेरा हुआ, मान लो किसी ऑर्गेनिज्म का यदि एक बच्चा हुआ, तो उसमें कुछ और जीन चले गए, तब तक में उसमें वापस म्यूटेशन हो गया, अगले बच्चे में कुछ और जीन चले गए। होना था बच्चा सीधा, हो गया बच्चा उल्टा। बच्चे के अंदर होनी थी कुछ और, नाक कहीं और लगनी थी, लग गई कहीं और। बच्चे के अंदर बच्चे को नॉर्मल पैदा होना चाहिए था, वो पैदा ले लिया विथ फरोड टंग, डाउन सिंड्रोम। तो डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज कैन अकर यदि स्टोरेज वाला जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा तो। क्योंकि हमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करना है भाई, हमें उसी स्थिति में, हमें ह्यूमन से ह्यूमन ही चाहिए, और ह्यूमन भी ऐसा वाला चाहिए जो बढ़िया पैदा हो, इन बेटर स्टेट, सो दैट इट कैन अर्न इट्स लाइवलीहुड, ताकि वो ज़िंदगी अपनी अच्छी से काट सके। और वो कब होगा? जब हम अपनी डीएनए की कॉपी या फिर अपने जेनेटिक मटेरियल की कॉपी, जो अच्छी वाली कॉपी है, उसको ट्रांसमिट कर पाएँ। तो अच्छी वाली कॉपी ट्रांसमिट कब कर पाओगे? जब उसे अच्छे से स्टोर करोगे। अगर अच्छे से स्टोर ही नहीं होगा, वो हमेशा रिएक्ट करता रहेगा, उसमें हमेशा चेंजेस आते रहेंगे, तो क्या आपको लगता है कि जो चीज़ें, जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर है, क्या वो आप अपने बच्चों को ट्रांसमिट कर पाओगे, अपने ऑफस्प्रिंग को, अपने प्रोजेनी को दे पाओगे? बिल्कुल नहीं दे पाओगे। इसीलिए आरएनए कैनॉट act as a good genetic material meant for storage there, and RNA को इसीलिए बेटर जेनेटिक मटेरियल नहीं माना गया, और इसीलिए आरएनए से इवोल्यूट होकर डीएनए का उत्पत्ति हुआ, या फिर डीएनए की ऑरिजिन हुई। और आपको पता है कि जब भी चीज़ें इवोल्यूट होती है समय के साथ, तो वो चीज़ें लोअर से एडवांस लेवल की तरफ जाती है। मतलब कि आप जब इवोल्यूशन पढ़ोगे तो इवोल्यूशन में बताया गया है कि इवोल्यूशन में कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा बढ़ती है, क्योंकि नेचर के साथ हमें अडेप्ट करना है। तो ये इवोल्यूशन का नियम है कि इवोल्यूशन में जब कभी भी चीज़ें बनेगी, मान लो जब आप इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ोगे, ये मैं बता रहा हूँ, देखो ये जब इवोल्यूशन चैप्टर को जब आपको मैं बताऊँगा, तो मैं इवोल्यूशन में आपको बताऊँगा कि इन इवोल्यूशन में हमेशा ऑर्गेनिज्म सिंपलर से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता है। तभी तो हम प्रोकैरियोट से यूकैरियोट बन गए। प्रोकैरियोट का ऑर्गेनाइजेशन कितना सिंपल है ना? पहले तो आपको पता है कि ह्यूमन कहाँ से आया? एम्फीबियन से बने, रेप्टाइल से बने ना।
तो जब ह्यूमन एम्फीबियन से आए, फिशेस से बने हैं ह्यूमन, तब फिशेस से मैमल्स बनना इवोल्यूशन है कि नहीं है? तो फिशेस कम इवॉल्व थे, लेस इवॉल्व, और ह्यूमन ज़्यादा इवॉल्व है। क्यों ज़्यादा इवॉल्व है? क्योंकि फिशेस से बेटर कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे अंदर हैं, तो हम ज़्यादा इवॉल्व हुए। वही तो बात हुई कि इवोल्यूशन ऑलवेज प्रोग्रेसिव, हमेशा सही डायरेक्शन में जाती है और ये प्रोग्रेसिव होती है। हालांकि कुछ इवोल्यूशन रेट्रोग्रेसिव भी होती है जो कि पीछे की डायरेक्शन में जाती है, लेकिन वो एक्सेप्शन है। तो जब कभी भी इवोल्यूशन हुआ जब आरएनए में, तो आरएनए से यही चीज़ें इवोल्यूट हो गए, क्या बन गई? ये आरएनए जो था इससे इवोल्यूट हुई आगे की डायरेक्शन में और बन गया डीएनए, क्योंकि हमें वैसे जेनेटिक मटेरियल की तलाश थी जो कि स्टोर कर सके इन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। तो इसके बारे में मैंने क्या क्या बताया? ये फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है, इसमें म्यूटेशन फास्टर होते हैं, रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, स्टेबिलिटी कम होती है और बेटर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। ऑल राइट, लेट अस प्रोसीड। अब आरएनए के टाइप्स के बारे में जानते हैं। देखिए, आरएनए के मेनली 3 टाइप्स होते हैं। आरएनए के मेनली 3 टाइप्स होते हैं, एक आरआरएनए और एक एमआरएनए और एक टीआरएनए। और ये तीनों जो आरएनए हैं ये नॉन जेनेटिक हैं। कैसे वाले हैं? ये नॉन जेनेटिक वाले आरएनए हैं। ये कैसे वाले आरएनए हैं? इट इज नॉन जेनेटिक टाइप आरएनए। कैसे आरएनए हैं? इट इज नॉन जेनेटिक टाइप आरएनए। कहने का मतलब ये जो आरएनए है, इट डज नॉट प्ले द रोल ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये जेनेटिक मटेरियल का रोल ये वाला आरएनए प्ले नहीं करता है। समझ में आया क्या? Therefore, this RNA does not play the role of genetic material। तो जेनेटिक मटेरियल वाला जो आरएनए रोल प्ले करेगा वो दूसरा आरएनए है, ठीक है। तो और वैसे आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल का रोल प्ले करेंगे, जो जेनेटिक मटेरियल बनाने के काम आएंगे। कुछ ऑर्गेनिज्म में मैंने आपको बताया था ना कि इन सम ऑर्गेनिज्म जेनेटिक मटेरियल कौन होते हैं? आरएनए ही तो होता है इन सम ऑर्गेनिज्म। इन सम ऑर्गेनिज्म आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो इफ आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन सम ऑर्गेनिज्म, देयरफॉर दोज टाइप ऑफ जेनेटिक आरएनए विच फॉर्म्स जेनेटिक मटेरियल जो बनाते हैं उन्हें जेनेटिक आरएनए बोलते हैं, या फिर जीनोमिक आरएनए विच बिहेव्स एज जेनेटिक मटेरियल। लेकिन आरएनए जो हमें पढ़ना है, जो हमारे काम का है, क्योंकि हमारे अंदर तो डीएनए है, तो वो 3 तरह के होते हैं। और वो कौन कौन होते हैं? आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। क्या होते हैं ये सारी बातें हम डिटेल में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बस सुनते जाइए आप, चीज़ों को लिखते जाइए, समझते जाइए और सुनते जाइए। अब अदर टाइप्स जो आरएनए होते हैं, एक तो जेनेटिक आरएनए जो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल का रोल प्ले कर रहा होता है। एग्जाम्पल ले लो, रेट्रोवायरस ले लो, टोबैको मोजेक वायरस ले लो, रियो वायरस ले लो, क्यूबी बैक्टीरियोफेज ले लो, है ना। तो इन सभी के अंदर क्या हो रहा होता है? इन सभी के अंदर ये आरएनए जेनेटिक मटेरियल का रोल प्ले कर रहा होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? जेनेटिक आरएनए। फिर एक होता है कैटालिटिक आरएनए, मतलब जहाँ पे आरएनए एंजाइम के रूप में बिहेव कर रहा होता है उसे बोलते हैं हम कैटालिटिक आरएनए। कोई दिक्कत नहीं। एक होता है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, जिसे एसएनआरएनए से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। स्मॉल क्यों बोला गया? स्मॉल इसलिए बोला गया ना क्योंकि ये इसमें न्यूक्लियोटाइड्स का जो नंबर है ये कम है। इट हैज लेस नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, देयरफॉर इट्स नॉट स्मॉल। इसको इसलिए स्मॉल बोला गया। साइटोप्लाज्मिक आरएनए मतलब कि एससीआरएनए इसको शॉर्ट में बोलते हैं। इट इज फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। नाम ही इससे सब कुछ समझ में आ रहा है। स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए मतलब कि एसएनआरएनए फाउंड इन द न्यूक्लियस। स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए मतलब एससीआरएनए फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। नोट इट डाउन, लेट अस प्रोसीड। तो हमें कितने तरह के आरएनए को पढ़ना है? हमें इन सारे तरह के आरएनए को आगे चलकर डिटेल में पढ़ना है और बारी बारी से हम सारी चीज़ों को देखेंगे। कौन कौन सा आरएनए? आरआरएनए, वेट, आरआरएनए, एमआरएनए एंड टीआरएनए। एनी प्रॉब्लम? आरआरएनए, एमआरएनए एंड टीआरएनए। और ये तीनों कैसे आरएनए? इधर नॉन जेनेटिक आरएनए। अदर जो टाइप्स हैं, एक जेनेटिक आरएनए है जिसको अपन जीनोमिक आरएनए भी बोलते हैं। जेनेटिक आरएनए, जीनोमिक आरएनए क्या होते हैं? विच बिहेव्स एज जेनेटिक मटेरियल। कैटालिटिक आरएनए कौन होते हैं? व्हेन आरएनए बिहेव्स एज एंजाइम के रूप में, जब आरएनए बिहेव करता है तो उसे कैटालिटिक आरएनए बोलते हैं, क्योंकि कैटालिटिक वाला रोल ही एंजाइम प्ले करता है। स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए का मतलब हुआ एसएनआरएनए विच इज फाउंड इन द न्यूक्लियस, एंड स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए का मतलब हुआ एससीआरएनए विच इज फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। कोई दिक्कत नहीं। और स्मॉल क्यों लिख रखा है? बिकॉज इट हैज लेस नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ऑलराइट, लेट अस प्रोसीड। आगे हम देखते हैं। तो मैंने आपको बताया कि 3 तरह का हमारे पास मेनली आरएनए होता है। तो जो 3 तरह के मेन आरएनए होते हैं वो कौन कौन होते हैं? आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। तो जब आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए के बारे में हम पढ़ेंगे तो आइए पहले इन तीनों के बीच के डिफरेंसेस को देखते हैं, क्योंकि जब तक इनके बीच के डिफरेंसेस क्लियर नहीं होंगे और कॉम्परेटिव इनकी स्टडी हम कर लेंगे डिफरेंसेस क्लियर करके, तो आगे चल के हम ये जो मेन टाइप के आरएनए है, जो आगे चल कर ट्रांसक्रिप्शन वाला जो प्रोसेस होगा, जो कि डीएनए से एमआरएनए के बनने को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। और ट्रांसलेशन किसे बोलते हैं? उसी एमआरएनए की कॉपी से एक प्रोटीन बनना। और एमाइनो एसिड, प्रोटीन्स क्या होते हैं? एमाइनो एसिड का क्लस्टर होता है। तो उस प्रोटीन का एमआरएनए से बनना
ट्रांसलेशन कहलाता है। तो इन सभी प्रोसेसेस में दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये जो दोनों प्रोसेसेस हैं वहाँ पर इन तीनों आरएनए का काफ़ी बड़ा रोल होता है। अब क्या रोल होता है, कैसे रोल होता है, जब हम उस टॉपिक को देखेंगे तो पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, सारा चीज़ें बता दूंगा, समझा दूंगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। सारा क्वेश्चन कर लेना एक बार में, एक गो में पूरे के पूरे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। ऑलराइट, but before moving, let us discuss the differences between RNA, mRNA, rRNA, mRNA and tRNA. ऑलराइट, तो पहला पॉइंट मैंने यहाँ पर कॉम्पैरेटिव एनालिसिस इसलिए कर दिया है, आप इसे नोट डाउन कीजिएगा, काफ़ी अच्छी चीज़ है, आपको मजा आएगा जानकर। देखते हैं, देखिए क्या है। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म आर, यहाँ पे जो है ना ये आर, इट स्टैंड्स फॉर राइबोसोमल, देयरफॉर इसे राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं। एम आरएनए दैट इज मैसेंजर आरएनए एंड टी आरएनए इज ट्रांसफर आरएनए। अब आरएनए को, आर आरएनए को राइबोसोमल आरएनए क्यों बोले? एक मिनट, आरएनए को, ये जो आर आरएनए है आपका, इसे राइबोसोमल आरएनए क्यों बोले? क्वेश्चन आ सकता है ना कि इसे राइबोसोमल आरएनए हमने क्यों बोला। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि राइबोसोमल आरएनए क्यों बोला। इसे राइबोसोमल आरएनए इसलिए हमने बोला, इसलिए हमने इसे आर आरएनए बोला। क्या बोला? इसीलिए हमने इसे क्या बोला? आर आर एन ए, इसीलिए बोला क्योंकि ये जो आर वाला, जो ये आर जो दिखा रहा है यहाँ पे, इट स्टैंड्स फॉर राइबोसोम। क्या बोलते हैं इसे? ये राइबोसोम बनाएगा। तो आर आरएनए इसे इसलिए बोला बिकॉज इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। और मैसेंजर आरएनए क्यों बोला? मैसेंजर आप किसे बोलते हो? जो मैसेज पहुंचाता है। तो मैसेंजर आरएनए जो एम आरएनए यहाँ आपका जो एम आरएनए है ना, एक मिनट, जो आपका एम आरएनए है, ये एम आरएनए जो आपका है, ये एम स्टैंड्स फॉर मैसेंजर। एम किसके लिए स्टैंड करता है? मैसेंजर, मतलब कि ये मैसेज पहुंचाने वाला काम है। मतलब कि ये जो मैसेज अपना पहुंचाता है ना, मैसेज, अरे यार स्टाइलस इज नॉट वर्किंग। सो इन एम आर एन एम स्टैंड फॉर मैसेंजर। एम किसके लिए स्टैंड होता है? एम स्टैंड फॉर मैसेंजर, देयरफॉर। और मैसेंजर का काम क्या होगा कि मैसेज को ट्रांसमिट करना है, मैसेज पहुंचाना है, इसलिए इसे मैसेंजर आरएनए। और टी आरएनए में टी स्टैंड्स करता है ट्रांसफर, मतलब कि ये आरएनए कुछ चीज़ों को ट्रांसफर करने में मदद करेगा। और ये कौन सी चीज़ को ट्रांसफर करेगा? ट्रांसफर करता है ये किसको बताएं? ये ट्रांसफ़र करता है एमाइनो एसिड्स को। ये ट्रांसफ़र करता है एमआरएनए के स्ट्रैंड पे एमाइनो एसिड को ट्रांसफ़र करता जाएगा और प्रोटीन्स बनाता जाएगा। और ये प्रोसेस कैसे होती है अपन ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पर तो बस आप जान लो कि ये प्रोटीन्स एमाइनो एसिड को ट्रांसफ़र करता है। अगर इसका सेल में अमाउंट देखें तो इसका सेल में जब आप अमाउंट की बात करोगे ना, तो सबसे ज़्यादा अमाउंट होता है आरआरएनए का। अब ये कैसे पता चलेगा, आप याद कैसे रखोगे कि सबसे ज़्यादा आरआरएनए का? देखो, सेल में यदि आप बात करो तो राइबोसोम पाए जाते हैं क्या? लार्ज नंबर में, लार्ज नंबर में राइबोसोम पाए जाते हैं, क्योंकि यू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे भी राइबोसोम पाया गया आपका। फिर क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है उस पर भी राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम आपको फिर क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के भी अंदर पाया जाता है, प्लास्टिड्स के भी अंदर राइबोसोम पाए जाते हैं। तो जहाँ जहाँ राइबोसोम है वहाँ वहाँ आरएनए है। क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा कि राइबोसोम इज मेडअप ऑफ आरआरएनए एंड प्रोटीन्स। तो जहाँ जहाँ राइबोसोम वहाँ वहाँ आरएनए। तो राइबोसोम का नंबर क्योंकि ज़्यादा है सेल के अंदर, इसीलिए आरआरएनए सेल के अंदर मैक्सिमम है। कोई दिक्कत? आरआरएनए इज मैक्सिमम। और एमआरएनए मिनिमम होता है। अब ये क्यों होता है एमआरएनए मिनिमम? इसलिए होता है क्योंकि एमआरएनए क्या, एक स्ट्रैंड है जो कि डीएनए से बना है। डीएनए से एक स्ट्रैंड है, वो एमआरएनए है। और एमआरएनए का काम क्या होता है? डीएनए से मैसेज लेता है और पहुंचाता है। तो डाकिया का नंबर कम होता है, बस आप जान लो क्यों कम होता है। क्योंकि इसको एक बार चिट्ठी पहुंचाएगा, खत्म। इसका तो काम ये है ना कि इन्फॉर्मेशन जिसको पहुंचाना है वो पहुंचा देगा, उसके बाद ये डिग्रेड कर जाएगा। इसीलिए इसका नंबर मिनिमम होता है। और ये 15 से 20% होते हैं, मतलब ठीक ठाक होते हैं, क्योंकि इसका काम क्या है? अमाइनो एसिड को पहुंचाना। साइज की यदि हम बात करें तो इसका साइज होता है मीडियम, इसको आपको ध्यान रखना है। और इसका साइज होता है लॉन्गेस्ट। क्यों लॉन्गेस्ट होगा इसका साइज? देखिए, अगर मान लो कि ये डीएनए की कॉपी है, डीएनए की कॉपी है। अब डीएनए की कॉपी से एक कॉपी बन गई एमआरएनए की। ये क्या बनी? ये एमआरएनए की कॉपी बन गई। तो ये एक कॉपी जो आपको बनती हुई यहाँ पर दिख रही है, ये काफ़ी लंबी होती है और इसमें ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। क्या होंगे?
ये ढेर सारे इसमें न्यूक्लियोटाइड्स लगे हुए होंगे, जुड़े हुए होंगे न्यूक्लियोटाइड। तो जितनी लंबी चेन होगी उतना बड़ा न्यूक्लियोटाइड्स होगा, और जितना बड़ा न्यूक्लियोटाइड होगा उतना ही बड़ा इसका साइज होगा, और जितना ज़्यादा साइज होगा उतना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा। आई बात समझ में? तो जिसके क्योंकि लंबा होता है इसलिए इसका साइज भी बड़ा है और मैक्सिमम है इसका मॉलिक्यूलर वेट। और ट्रांसफर आरएनए का काम क्या है? बस एक एक एमिनो एसिड को पकड़ के लाना, और एमिनो एसिड सबसे छोटे यूनिट्स होते हैं पॉलीमर के, प्रोटीन्स के सॉरी, तो वो सबसे छोटा होता है उसका साइज भी, और उसका मॉलिक्यूलर वेट भी मिनिमम होगा, और ये मीडियम होता है, दोनों एवरेज, मतलब इससे एमआरएनए से छोटा लेकिन टीआरएनए से बड़ा। साइट ऑफ सिंथेसिस आरआरएनए के बारे में जब आप पढ़ रहे होगे, जब क्लास 11th में जब आप न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे होगे, तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा न्यूक्लियस के अंदर एक रीजन होता है जो कि मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर होता है, हाईली कंडेंस स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस के अंदर, उसे अपन बोलते हैं न्यूक्लियोलस। और आपने पढ़ा होगा कि न्यूक्लियोलस इज द साइट ऑफ एक्टिव आरआरएनए सिंथेसिस, मतलब कि न्यूक्लियस ओलस के अंदर ही आरआरएनए बनते हैं। और कौन कौन से आरएनए बनेंगे? 28S, 18S और 5.8S। लेकिन न्यूक्लियोलस के अंदर तो ये तीनों एस वाले बनेंगे, और न्यूक्लियोप्लाज्म जो आपका है ना, ये न्यूक्लियोप्लाज्म, इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर आपके 5S टाइप जो आरआरएनए होते हैं वो बनते हैं। आपने जब पढ़ा होगा आरआरएनए के बारे में तो आपको पता होगा कि 28S, 18S, 5.8S क्या होता है। मैं उम्मीद इतना तो रख सकता हूँ कि आपको ये तो पता होगा कि 28S, 18S, 5.8S और 5S क्या होता है। ये डिफरेंट टाइप्स आरआरएनए जब आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जब राइबोसोम सब यूनिट्स में होते हैं। ठीक है, आगे ऐसे हम डिटेल में बात करते हैं एस क्या होता है। एस एक्चुअली में क्या होता है? एस व्हाट डज एस रिप्रेजेंट? यहाँ पर जो आप एस देख रहे हो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बताइए? दिस एस ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है? इट रिप्रेजेंट्स साइज, या फिर आप बात करो वेट, यही तो रिप्रेजेंट करता है। और आगे मैंने इन बातों को लिख भी रखा है, ठीक है। तो इसमें जो आरआरएनए जो आप देख रहे हो, आरआरएनए जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरआरएनए आपने अभी देखा, वो आरआरएनए डिफरेंट टाइप्स जो आपने अभी अभी देखा, इसमें कि 28S वाला, 18S वाला और 5.8S वाला न्यूक्लियोलस में बनता है, लेकिन 5S वाला न्यूक्लियोप्लाज्म में बनता है। और बाकी जो अपने आरएनए हैं, दैट इज एमआरएनए, ये न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर बनता है, और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर टीआरएनए भी बनता है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है सर? न्यूक्लियोप्लाज्म होता क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म कुछ नहीं होता बाबू। न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड मटेरियल या फिर न्यूक्लियस का जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है ना, विच इज बाउंडेड बाई ए डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसी ग्राउंड सब्सटेंस को, जैसे सेल का साइटोप्लाज्म है समझ लो, वैसे न्यूक्लियस का न्यूक्लियोप्लाज्म है, कोई दिक्कत नहीं। आइए देखते हैं कोडिंग रीजन। मतलब आपको बस यहाँ पर जान लो कि कोडिंग रीजन इसमें नहीं होता, इसमें बहुत सारे कोड्स प्रेजेंट होते हैं, और इसमें वन एंटी कोडोन होता है। क्या होता है ना, ये आगे देखेंगे, ठीक है। जब अपन आगे पढ़ेंगे ना, यहाँ पर लिख लो बस, आप आगे देखेंगे कि होता है ये क्या। मॉडिफिकेशन इन बेसिस, मतलब बेसिस का मॉडिफिकेशन करने का मतलब कि बेसिस कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजन बेसिस, या तो प्यूरिन्स होंगे या फिर पायरिमिडिन। तो इसमें बेसिस की मॉडिफिकेशन बहुत ही कम होती है, और इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होती। लेकिन जब आप इसकी बात करोगे तो इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन होते हैं। किसमें? टीआरएनए के केस में। ये सारे, ये दोनों पॉइंट हम आगे देखेंगे। एंजाइम सिंथेसिस, अब मान लो कि आरएनए बन रहा है, तो आरएनए कौन बनाएगा? आरएनए है क्या? एक पॉलीमर है, तो आरएनए कौन बनाएगा? आरएनए पॉलीमरेज बनाएगा। यहाँ पर भी आरएनए पॉलीमरेज, यहाँ पर भी आरएनए पॉलीमरेज। प्रोकैरियोट्स में सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज एक ही टाइप का होता है, इसलिए तीनों में आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन यूकैरियोट में आरआरएनए आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, एमआरएनए आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, और टीआरएनए आरएनए पॉलीमरेज थर्ड बनाता है। बस आप इसको याद रख लेना, और कोई ज़्यादा नहीं। आरएनए पॉलीमरेज भी आप याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं, अगला डिफरेंस में आते हैं अपन। अगला डिफरेंस अपना स्टेबिलिटी के लिए। आरएनए जो होता है ये मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है। कैसा है? क्यों स्टेबल स्ट्रक्चर है? इसलिए स्टेबल स्ट्रक्चर है क्योंकि आरएनए का काम राइबोसोम बनाने के लिए है, और राइबोसोम एक स्ट्रक्चर है, एक ऑर्गेनेल है। तो जब कोई चीज़ स्ट्रक्चर को बना रहा है, जब कोई भी चीज़ किसी सेल ऑर्गेनेल को बना रहा है, तो उसका स्टेबल होना जरूरी है। इसीलिए ये मोस्ट स्टेबल होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच इज द मोस्ट स्टेबल टाइप ऑफ आरएनए। स्टेबिलिटी के मामले में आरएनए सबसे ज़्यादा स्टेबल आरआरएनए होता है, और ये कभी डिग्रेड नहीं होता, बिकॉज इट फॉर्म्स द स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ सम सेल ऑर्गेनेल। और एमआरएनए लीस्ट स्टेबल होता है। क्यों क्यों लीस्ट स्टेबल होगा? क्योंकि इसका काम क्या है साहब, ये देखिए ना, ये इसका काम क्या है। ये रहा अपना डीएनए, देखिए देखिए ना साहब, यहाँ पे ये रहा अपना डीएनए, इट इज आवर डीएनए। डीएनए ने क्या किया? एक कॉपी बना दिया। ये कॉपी बनाया डीएनए, डीएनए से कॉपी बना, ये कॉपी यहाँ 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 यहाँ, ये कॉपी इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेके यहाँ पे चला आया, मैसेंजर अटैक किया, इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आगे पहुँचा दिया, और उसके बाद इसका काम खत्म।
फिर ये डीएनए मैसेज भेजेगा, फिर से ये इन्फॉर्मेशन लेके दूसरा वाला आ गया यहाँ पर, फिर डिग्रेड, खत्म। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि जो ये एमआरएनए क्या होता है, एमआरएनए इज लीस्ट स्टेबल। क्यों लीस्ट स्टेबल होता है? बिकॉज इट डिग्रेड्स क्विकली। वाई इट डिग्रेड्स क्विकली? क्योंकि इसके पास तो इन्फॉर्मेशन किसी एक चीज़ के लिए आया, डीएनए से इसने पहुंचाया, खत्म इसका काम। और टीआरएनए स्टेबल होता है, ये डिग्रेड स्लोली करता है, ठीक है। इसका अदर नेम क्या है आरएनए का? इट इज सॉल्युबल आरएनए बिकॉज इट रिमेन्स इन सॉल्युबल फॉर्म्स। ऑल राइट, ये पूछा जाता है कि कौन सा सॉल्युबल है, ये इसका दूसरा नाम होता है इन्फॉर्मेशनल आरएनए। क्यों इन्फॉर्मेशनल आरएनए बोलेंगे? अरे बहुत आसान है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा है, डाकिया का काम कर रहा है, इसलिए इन्फॉर्मेशन। और ये टेम्पलेट आरएनए, टेम्पलेट आरएनए क्यों बोलते हैं? क्योंकि यही आरएनए टेम्पलेट के रूप में काम करता है, जिस पे प्रोटीन्स के कोड और टीआरएनए आकर जुड़ते हैं और प्रोटीन्स बनने में मदद करते हैं। ऑल राइट, या आगे ऐसे आगे इसके बारे में हम देखेंगे, आप बस इस यहाँ पर इन नाम को ध्यान रखना है। और ये इनसॉल्युबल होता है, कौन? अपना इट इज़ इनसॉल्युबल, टीआरएनए इज इनसॉल्युबल। और इसे अडेप्टर आरएनए भी बोलते हैं। मैंने शुरू जब आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि आरएनए स्ट्रक्चरल रोल प्ले कर सकता है, कैटालिटिक रोल प्ले कर सकता है, मैसेंजर का रोल प्ले कर सकता है, अडेप्टर का रोल प्ले कर सकता है। क्यों बताया था? आ रहा है समझ में कुछ? और पहले भी दिन बताया था मैंने आपको कि टीआरएनए जो होता है वो अडेप्टर का रोल, या फिर अडेप्टर आरएनए क्या होता है? जो अडेप्ट करता है। अडेप्ट क्या करेगा? मतलब मॉलिक्यूलर जो एमाइनो एसिड्स होंगे, उस एमाइनो एसिड्स को पकड़ पकड़ कर लाएगा, पकड़ पकड़ कर लाएगा और प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। इसीलिए ये अडेप्टर आरएनए भी कहलाता है। इसके टाइप्स कितने होते हैं आरएनए के? आरएनए के 3-4 टाइप्स होते हैं आरएनए के। कौन कौन से आपने पढ़ भी रखा होगा, आगे मैं डिटेल में बताऊंगा भी आपको कौन कौन से होते हैं। 28S, 23S, 16S, 5S, 5.8S, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अगर डिफरेंट डिफरेंट सब यूनिट्स की अपन बात करें तो आपको पता चलेगा। ये भी बहुत टाइप्स के होते हैं एमआरएनए, मेनी टाइप्स। क्योंकि ये मेनी टाइप्स के होंगे ना, जितना जीन पता रहेगा डीएनए में। जीन क्या होते हैं? जीन डीएनए का वो सेगमेंट होता है जो प्रोटीन बनाता है। अब मान लो जीन डीएनए का वो सेगमेंट है जो प्रोटीन बना रहा है। अब किसी के बॉडी में, किसी का बॉडी में मान लो किसी का हेयर है ग्रे, तो यदि किसी का हेयर ग्रे है, तो किसी का हेयर यदि मान लो कि ग्रे है, तो उसका डीएनए ये रहा, ये उसका डीएनए रहा। तो इसका जिसका हेयर ग्रे है, तो वो क्या इन्फॉर्मेशन अपने जब एमआरएनए को बनाएगा या फिर अपना डीएनए का रेप्लिकेशन करेगा, तो ग्रे हेयर का ही तो इन्फॉर्मेशन आगे ट्रांसमिट करेगा ना। वो आगे तो ग्रे हेयर का इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करेगा। तो मान लो इसके अंदर किसी और तरह की सीक्वेंस आ गई, अगर किसी और का डीएनए किसी और बंदे का, उसके अंदर हेयर मान लो कि ब्लैक है, उसके अंदर हेयर, उसके अंदर मान लो हेयर ब्लैक है, तो वो ब्लैक, कॉल राइट, तो ये ब्लैक और ये ग्रे। तो जितने प्रकार के डीएनए में जिस जिस वेरिएशंस के जीन पाए जाएंगे, उतने ही टाइप के एमआरएनए बन सकते हैं। और आपको मैंने बताया था कि ह्यूमन जीनोम के अंदर कितने बेस पेयर्स होते हैं? 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स। और यही बेस पेयर्स तो अल्टीमेटली जीन्स होते हैं। जीन्स क्या होता है? डीएनए का एक सेगमेंट ही तो होता है। तो एक सेगमेंट के अंदर कितने बेस पेयर्स होते हैं? तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आप बस सोच लो। और वही अल्टीमेटली क्या बनाता है? एमआरएनए बनाता है। और एमआरएनए की कोडिंग इसलिए डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं एमआरएनए के अंदर मैसेज। और जितने टाइप के मैसेज बना सकता है डीएनए, वही डीएनए तो आरएनए बनाएगा। तो जितना वेरिएशन पूरे धरती पर ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाएगा, उतने तरह के एमआरएनए बन सकते हैं। इसलिए इसका नंबर अपन काउंट नहीं कर सकते। इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर? बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ जीन्स। यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि इट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ जीन्स। कि एमआरएनए का क्या होता है? एमआरएनए नंबर इज टोटली बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ जीन्स। एमआरएनए किस पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टाइप्स एंड नंबर ऑफ जीन। और ये देखिए, ये मोर देन 60 टाइप्स होता है। ये क्यों होता है 60 टाइप्स? ये भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। अब इसका फंक्शन देख लो। मैंने आपको बताया था कि इसका रोल कैसा होता है, स्ट्रक्चरल रोल। कैसा होता है स्ट्रक्चरल रोल? क्यों? क्योंकि ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनाने में मदद करता है। किसका? राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनाएगा। और कैटालिटिक रोल, प्रोटीन सिंथेसिस में कैटलिस्ट का रोल प्ले करने का काम ये करता है। कैटलिस्ट कहने का मतलब एंजाइम का रोल प्ले करने में काम करता है। कैसे करता है? जब प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं ना, तो यही बनाता है। कैसे? जब अपन ट्रांसलेशन पढ़ेंगे ना तो पढ़ेंगे। बस मैं आपको ये डिफरेंसेस इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि आप इसे लिख लो। एक बार जब आप लिख लोगे ना, तो आपको रिवाइज करने के लिए काफ़ी आसान रहेगा। और यहाँ से क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। इट इज़ मस्ट कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप मेरे को कहना। और ये क्या करता है एमआरएनए? इट कोड्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। इसका काम ही है कि प्रोटीन सिंथेसिस के कोड करना। इसके पास इन्फॉर्मेशन है तो इस कोडिंग करेगा। इन्फॉर्मेशन डीएनए से आया है, तो डीएनए से जब इन्फॉर्मेशन आया तो इसका काम ही है कोडिंग करना। कोई दिक्कत? और इसका काम क्या है? इट बाइंड्स
इट बाइंड्स और कैरीज एमाइनो एसिड ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। ये क्या करता है, पकड़ पकड़ कर एमाइनो एसिड को लाएगा और mRNA पे बाइंड करवा देगा ताकि प्रोटीन की सिंथेसिस हो। कैसे होता है पूरा प्रोसेस अपन आगे डिटेल में बात करेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ तक हमने क्या देखा, इन सभी का डिफरेंसेस देखा और हमने पढ़ा कि हमें कितने तरह के टॉपिक्स को आरएनए के अंदर पढ़ना है। आगे जो डिटेल होगा उसमें हम आगे क्या कंटिन्यू करेंगे, आगे हम कंटिन्यू करेंगे आरआरएनए को, फिर आरआरएनए में क्या क्या होता है, आरआरएनए होता क्या है, फिर बात करेंगे एमआरएनए को जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं डिटेल में थोड़ा, फिर बात करेंगे टीआरएनए को, दैट इज ट्रांसफर आरएनए क्या होता है, मैसेंजर आरएनए क्या होता है और राइबोसोमल आरएनए क्या होता है। ठीक है, डिफरेंसेस आप पूरा नोट कीजिए, इसे एक बार रिवाइज कीजिए और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए, एनसीईआरटी रिवाइज करते रहिए और गोल के प्रति मोटिवेटेड रहिए। टिल देन थैंक यू। कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट।